یہ ہفتہ وار بائبل کا درسی واز پلین فیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 4 جون 2023 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعہ کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون: خدا واحد وجہ اور خالق۔ سنہری متن: زبور۔ ہماری مدد خداوند کے نام سے ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ جوابی مطالعہ: زبور۔ خداوند کی حمد کرو، آسمان پر سے خداوند کی حمد کرو، بلندیوں پر اس کی حمد کرو، اے اس کے فرشتوں سب اس کی حمد کرو، اے اس کے لشکروں سب اس کی حمد کرو، اے سورج، اے چاند اس کی حمد کرو، اے نورانی ستاروں سب اس کی حمد کرو، اے افلاق اس کی حمد کرو، اور تو بھی اے فضا پر کے پانی، یہ سب خداوند کے نام کی حمد کریں، کیونکہ اس نے حکم دیا اور یہ پیدا ہو گئے، اس نے ان کو عبدالآباد کے لیے قائم کیا ہے، اس نے اٹل قانون مقرر کیا ہے۔ درسی واز بائبل میں سے زبور۔ اے خداوند لشکروں کے خدا، تجھ سا زبردست کون ہے؟ تیری وفاداری تیرے چوگرد ہے، سمندر کے جوش و خروش پر تو حکمرانی کرتا ہے، تو اس کی اٹھتی لہروں کو تھما دیتا ہے۔ آسمان تیرا ہے، زمین بھی تیری ہی ہے، جہان اور اس کی معموری کو تو ہی نے قائم کیا، شمال اور جنوب کو پیدا کرنے والا تو ہی ہے۔ خداوند عبدالآباد مبارک ہو، آمین ثم آمین۔ پیدائش۔ خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور زمین ویران اور سنسان تھی اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا، اور خدا کی روح پانیوں کی سطح پر جنبش کرتی تھی، اور خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا، اور روشنی ہو گئی، اور خدا نے کہا کہ روشنی اچھی ہے، اور خدا نے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا، اور خدا نے روشنی کو دن کہا اور تاریکی کو رات، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو پہلا دن ہوا۔ اور خدا نے کہا کہ پانیوں کے درمیان فضا ہو تاکہ پانی پانی سے جدا ہو جائے، پس خدا نے فضا کو بنایا، اور فضا کے نیچے کے پانی کو فضا کے اوپر کے پانی سے جدا کیا، اور ایسا ہی ہوا۔ اور خدا نے فضا کو آسمان کہا، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو دوسرا دن ہوا۔ خدا نے کہا کہ آسمان کے نیچے کا پانی ایک جگہ جمع ہو کر خشکی نظر آئے، اور ایسا ہی ہوا۔ اور خدا نے خشکی کو زمین کہا، اور جو پانی جمع ہو گیا تھا اس کو سمندر، اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے۔ اور خدا نے کہا زمین گھاس اور بیجدار بوٹیوں کو اور پھلدار درختوں کو جو اپنی اپنی جنس کے موافق پھلیں اور جو زمین پر اپنے آپ میں بیج رکھیں اگائے، اور ایسا ہی ہوا۔ تب زمین نے گھاس اور بوٹیوں کو جو اپنی اپنی جنس کے موافق بیج رکھیں، پھلدار درختوں کو جن کے بیج ان کی جنس کے موافق ان میں ہیں، ان میں اگایا، اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے۔ اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو تیسرا دن ہوا۔ اور خدا نے کہا کہ فلک پر نیر ہوں کہ دن کو رات سے الگ کریں، اور وہ فلک پر انوار کے لیے ہوں کہ زمین پر روشنی ڈالیں، اور ایسا ہی ہوا۔ خدا نے 2 بڑے نیر بنائے، ایک نیر اکبر کہ دن کو حکم کرے، اور ایک نیر اصغر کہ رات پر حکم کرے، اور اس نے ستاروں کو بھی بنایا۔ اور خدا نے ان کو فلک پر رکھا کہ زمین پر روشنی ڈالیں، اور دن پر اور رات پر حکم کریں، اور اجالے کو اندھیرے سے جدا کریں، اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے۔ اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو چوتھا دن ہوا۔ اور خدا نے کہا کہ پانی جانداروں کو کثرت سے پیدا کرے، اور پرندے زمین کے اوپر فضا میں اڑیں۔ اور خدا نے بڑے بڑے دریائی جانوروں کو اور ہر قسم کے جاندار کو جو پانی سے بکثرت پیدا ہوئے تھے ان کی جنس کے موافق، اور ہر قسم کے پرندوں کو ان کی جنس کے موافق پیدا کیا۔
और खुदा ने देखा कि अच्छा है। और खुदा ने उनको ये कहकर बरकत दी कि फलो और बढ़ो और इन समंदरों के पानी को भर दो और परिंदे जमीन पर बहुत बढ़ जाएं। और शाम हुई और सुबह हुई, सो 5वां दिन हुआ। और खुदा ने कहा कि जमीन जानदारों को उनकी जिन्स के मुआफिक चौपाए और रेंगने वाले जानदार और जंगली जानवर उनकी जिन्स के मुआफिक पैदा करे। और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने जंगली जानवरों और चौपायों को उनकी जिन्स के मुआफिक बनाया। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी छवि की मानद बनाएं, और वो समंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपायों और तमाम जमीन और सब जानदारों पर जो जमीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखें। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर और नारी उनको पैदा किया। खुदा ने उनको बरकत दी और कहा, फलो और बढ़ो और जमीन को मामूरों महकूम करो और समंदर की मछलियों और हवा के परिंदों और कुल जानवरों पर जो जमीन पर चलते हैं इख्तियार रखो। और खुदा ने कहा कि देखो, मैं तमाम रोए जमीन को कुल बीजदार सब्जी और हर दरख्त जिसमें उसका बीजदार फल हो तुमको देता हूँ, ये तुम्हारे खाने को हों। और जमीन के कुल जानवरों के लिए और हवा के कुल परिंदों के लिए और उन सब के लिए जो जमीन पर रेंगने वाले हैं, जिनमें जिंदगी का दम है, कुल हरी बूटियां खाने को देता हूँ। और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने सब पर जो उसने बनाया था नजर की और देखा कि बहुत अच्छा है। आमूस। क्योंकि देख, उसी ने पहाड़ों को बनाया और हवा को पैदा किया। वो इंसान पर उसके ख्यालात को जाहिर करता है और सुबह को तारीक बना देता है और ज़मीन के ऊंचे मकामात पर चलता है। उसका नाम खुदावंद रब्बुल फ़वाज है। मुकाशफा। है हमारे खुदावंद और खुदा, तू ही तमजीद और इज़्ज़त और कुदरत के लायक है, क्योंकि तू ही ने सब चीज़ें पैदा की और वो तेरी ही मर्जी से थीं और पैदा हुईं। अब मैं मेरी बेकरेडी की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दरसी किताब साइंस और सेहत आयात की कुंजी के साथ में से ली गई तहरीरें पढ़ूंगा। साइंस और सेहत। खालिक, रूह, अक्ल, जहानत, सारी अच्छाई और हकीकत के इलाही असूल पर जोर देने वाला, खुद मौजूद जिंदगी, सच्चाई और मोहब्बत, वो जो कामिल और अबदी है, मादे और बदी का मुखालिफ, जिसका कोई असूल नहीं, खुदा जिसने वो सब कुछ बनाया जो बनाया गया था और खुद के मुखालिफ कोई एटम या अनसर न बना सका। खुदा कायनात को बशमूल इंसान खल्क करता और उस पर हुकूमत करता है। ये कायनात रूहानी ख्यालात से भरी पड़ी है जिन्हें वो तैयार करता है, और वो उस अक्ल की फरमाबरदारी करते हैं जो उन्हें बनाती है। खुदा ने इब्तदा में ज़मीन व आसमान को पैदा किया, और ज़मीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था, और खुदा की रूह पानियों की सतह पर जुम्बश करती थी। पैदाइश 1:1-2। वसीउल अज़ल में, साइंस और हस्ती की सच्चाई में, रूह और इसकी बेशुमार तख्लीक़ात वाहिद हक़ाइक़ हैं। तारीकी और अफरा तफरी, रोशनी, समझ और अब्दी हमांगी के फ़र्ज़ी फ़रीक़ैन हैं, और ये अदम के अनासर हैं। यहूदी क़बाइल का यहोवा एक इंसान का तख्लीक करदा खुदा था, जो गज़ब, तौबा और इंसान के तब्दील होने का ज़िम्मेदार था। क्रिश्चियन साइंस का खुदा आलमगीर, अबदी और इलाही मोहब्बत है, जो ना तब्दील होता है और ना बदी, बीमारी और मौत का सबब बनता है। ये वाकई और मायूसकुन तौर पर सच है कि पुराना कलाम उलट दिया गया है। इब्तदा में खुदा ने इंसान को अपनी खुदा की छवि पर पैदा किया, लेकिन बशर इंसान ही को जन्म देंगे और वो खुदा को इंसानी सूरत पर बना लेंगे। एक बशर का देवता कैसा है जो उल्टा बशर की बढ़ाई करता है। पैदाइश 1:21 आयत। और खुदा ने बड़े बड़े दरियाई जानवरों को और हर किस्म के जानदारों को जो पानी से बकसरत पैदा हुए थे, उनकी जिन्स के मुआफिक
और हर किस्म के परिंदों को उनके जिन्स के मुवाफिक पैदा किया, और खुदा ने देखा कि अच्छा है। रूह को क़ुव्वत, हजूरी और कुदरत की और मुक़द्दस ख़यालात, मोहब्बत के परों की भी अलामत दी जाती हैं। उसकी हजूरी के ये फरिश्ते, जिनके पास पाक तरीन फरमान है, अक़ल के रूहानी माहौल से मुंसलिक होते और मतवातर तौर पर ख़ुद की खसूसियात को दोबारा पैदा करते हैं। हम उनकी इनफरादी अशकाल को नहीं जानते, लेकिन हम ये जानते हैं कि उनकी फ़ितरत खुदा की फ़ितरत और रूहानी बरक़ात के साथ मुताबिकत रखती है। यूँ अलामती होते हुए खारजी हैं, ताहम नफसी हैं, ईमान और रूहानी फ़हम को बयान करते हैं। पैदाइश 1 बाब 27 आयत। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नरो नारी उनको पैदा किया। इस यादगार लम्हाती ख्याल पर जोर देने के लिए ये बार बार दोहराया गया है कि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया ताकि इलाही रूह की अक्कासी करे। इसका मतलब है कि इंसान एक आम इस्तिलाह है, मुज़क्कर, मुअन्नस और बेजिन्स सन्फ इंसानी नज़रियात हैं। कदीम ज़बानों में से एक में लफ्ज़ इंसान के लिए अक़ल का मुतरादिफ लफ्ज़ भी इस्तेमाल हुआ है। इस तारीफ़ को बशरियत पसंदों ने या किसी देवता की इंसानियत आमोज़ी ने कमज़ोर किया है। एक बशरियाती खुदा के फ़िक्रे में लफ्ज़ बशरियत 2 यूनानी अल्फाज से अक्स किया गया है जो इंसान और सूरत की तरफ इशारा करते हैं, और देवता की जिस्मानियत ख़त्म करने की जानलेवा दिमागी कोशिश के तौर पर जिनकी तशरीह की जाती है। अक़ल की ज़िंदगी देने वाली खसूसियत रूह है, ना कि मादा। मिसाली इंसान तख्लीक के साथ, जहानत के साथ और सच्चाई के साथ मुताबिकत रखता है। इलाही साइंस में हमारे पास खुदा को मुज़क्कर समझने का वैसा ही इख्तियार नहीं है जैसा उसे मुअन्नस समझने का नहीं है, क्योंकि मोहब्बत देवता का वाज़ह तर तस्वुर पेश करती है। लाफ़ानी इंसान जो रूह को पेश करता है और फ़ानी इंसान जो ये गलती पेश करता है कि ज़िंदगी और जहानत मादे में है। इनके माबैन हदबंदी की लकीरें मादे की खुशियों और तकलीफ़ों को खराफात ज़ाहिर करती हैं, और इनके माबैन इंसानी अक़ीदे को देवमालाई कहानी का बाप समझते हैं, जिसमें मादा ज़हीन देवताओं में मुनक़सिम पेश किया जाता है। इंसान की हक़ीक़ी खुदी सिर्फ़ उसी में काबिल शनाख्त है जो अच्छा और सच है। इंसान ना तो खुदकार है और ना इंसान का तख्लीक करदा है, उसे खुदा ने खल्क़ किया है। रूह की कायनात इलाही असूल या ज़िंदगी की तख्लीकी क़ुव्वत की अक्कासी करती है, जो अक़ल की कसीर अशकाल को दोबारा जन्म देती और मुश्तरका तस्वुर यानी इंसान के अजमा पर हुक्मरानी करती है। दरख्त और जड़ी बूटी खुद की किसी अफ़ज़ाइशी क़ुव्वत की वजह से फल पैदा नहीं करते, बल्कि अक़ल की वजह से, जिसमें सब कुछ शामिल होता है। एक मादी दुनिया फ़ानी अक़ल और इंसान एक खालिक के मानी पेश करते हैं। साइंसी इलाही तख्लीक फ़ानी अक़ल और कायनात को खुदा की तख्लीक करदा ज़ाहिर करती है। तख्लीकी असूल ज़िंदगी, सच्चाई और मोहब्बत खुदा है। कायनात खुदा की अक्कासी करती है, एक खालिक और एक तख्लीक के सिवा और कोई नहीं। ये तख्लीक रूहानी ख़यालात और उनकी शनाख्तों के अया होने पर मुश्तमिल है, जो लामहदूद अक़ल के दामन से जुड़े हैं और हमेशा मुनक़्क़स होते हैं। ये ख़यालात महदूद से लामहदूद तक वसी हैं और बुलंद तरीन ख़यालात खुदा के बेटे और बेटियां हैं। ये मानना के मादे में ज़िंदगी है और ये कि गुनाह, बीमारी और मौत खुदा की तख्लीक करते हैं, ये गलती कब बेनकाब होगी? ये कब समझा जाएगा कि मादे में ना तो जहानत ज़िंदगी है और ना ही एहसास है, और ये कि इसका मुतज़ाद ईमान तमाम दुखों का समरदार वसीला है। खुदा ने सब कुछ अक़ल के वसीला खल्क़ किया और सब कुछ कामिल और अबदी बनाया। फ़हम की तकालीफ सेहत बख्श हैं, अगर वो झूठे पुरलुत्फ़ अक़ायद को खींच कर दूर करते और रूह के फ़हम से मोहब्बत पैदा करते हैं, जहाँ खुदा की मखलूक़ात अच्छी हैं और दिल को शादमान करती हैं। ऐसी ही साइंस की तलवार है जिससे सच्चाई गलती मादियत का सर कलम करती है। इंसान की बुलंद इनफरादियत
اور قسمت کو جگہ فراہم کرتے ہوئے۔ اب میں میری بیکریڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے: تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو، اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے، حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں سائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آرا کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔